Hello children, today I will explain to you chapter 6 of your English reader book. The chapter name is The Brave Tin Soldier, written by Hans Christian Andersen. Before starting the chapter, I am giving you a short introduction of the writer of this fairy tale. Hans Christian Andersen was born on 2nd April 1805 in Denmark. He was born to poor parents, fought the rigid class structure of his time throughout his life. He was the author of many plays, novels, poems, travel books, and several autobiographies. While many of those works are almost unknown outside Denmark, his fairy tales are among the most frequently translated work in all the literary history. There were once 25 tin soldiers who were all brothers, for they had been made out of the same old tin spoon. They wore a splendid uniform, red and blue. ये 25 टीन सोल्जर्स की स्टोरी है जिनको पुराने टीन के स्पून से बनाया गया था, और ऐसे बनाया गया था तो कि उनको दिखने में ऐसा लगता था कि ये सारे भाई हैं, और उनको रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर यूनिफॉर्म से उनको सजाया गया था. The first thing in the world they ever heard were the words tin soldiers, uttered by a little boy who clapped his hands with delight when the lid of the box in which they lay was taken off. ये खिलौना जिस लड़के का था, वो लड़का जैसे ही ये टीन के सोल्जर्स जिस बॉक्स में रखे हुए थे उस बॉक्स के लिड को खोला तो हाथ ताली बजाते हुए वो बोला कि टीन सोल्जर्स. और ये टीन सोल्जर्स वर्ड्स जो है ये खिलौने पहली बार ये नाम सुने थे. They were given to him for a birthday present, and he stood them at a table to set them up. The soldiers were all exactly alike, except one who had only one leg. He had been left to the last, and then there was not enough of the melted tin to finish him. So they made him to stand firmly on one leg, and this caused him to be very remarkable. और ये जो टीन सोल्जर्स जो है ये उस लड़के को, उस बच्चे को उसके बर्थडे में प्रेजेंट मिला था, और वो बक्से से उन टीन सोल्जर्स को जब निकाल रहा था तो ऐसा लगा कि सभी एक जैसे हैं, केवल एक को छोड़ के, क्योंकि उसका केवल एक ही लेग था. क्यों? क्योंकि उसको बनाने वाला जो था उसको अपने मेल्टेड जो टीन है उसको सारे सोल्जर्स को बनाने के बाद थोड़ा कम पड़ गया था, जिसके कारण जो वन लेग सोल्जर है उसका एक ही पैर बन पाया था, दूसरा पैर नहीं बन पाया था. तो इसी वन लेग वाले सोल्जर्स को एक ही पैर पर उसको खड़ा किया गया, तो पर जिसके कारण वो काफी सुंदर दिखाई दे रहा था. The table on which the tin soldiers stood was covered with other playthings, but the most attractive to the eye was a pretty little paper castle. Through the small windows the rooms could be seen. टेबल पर जिस पर ये सोल्जर्स खड़े हुए थे उधर दूसरे खिलौने भी थे, पर इन सारे खिलौने में जो सबसे सुंदर दिख रहा था एक छोटा सा पेपर का बना हुआ कैसल था. कैसल मीन्स होता है फोर्ट, महल. तो और जिसके छोटे छोटे विंडो से अंदर के रूम दिखाई दे सकते थे. In front of the castle, a number of little trees surrounded a piece of looking glass, which was intended to represent a transparent lake. Swans made of wax
swam on the lake and were reflected in it. इस कैसल के सामने बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ जो है एक मिरर को चारों तरफ से घेरे हुए थे। शायद उसको एज ए लेक के ट्रांसपेरेंट लेक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था, जिस पर वैक्स से बना हुआ स्वैन जो है रखा हुआ था और ऐसा शो किया जा रहा था कि वो उसमें तैर रहा है और स्वयं का जो प्रतिबिंब है वो उस मिरर पर दिख रहा था। All this was very pretty, but the prettiest of all was a teeny little lady who stood at the open door of the castle. She also was made of paper, and she wore a dress of clean muslin with a narrow blue ribbon over her shoulders, just like a scarf. In front of this was fixed a glittering tinsel rose as large as her whole face. ये सारे तो सुंदर थे, पर इन सब में जो सुंदर थे वो कैसल के सामने खड़ी छोटी सी एक लेडी थी। वो भी पेपर से बनी हुई थी और उसका जो ड्रेस था वो मुस्लिम, वो एक प्रकार का कपड़ा होता है, उससे बना था और उसमें एक नैरो ब्लू कलर का रिबन था, वो उसके शोल्डर पे था और वो ऐसा दिख रहा था जैसे वो उसका स्कार्फ हो। और उसके सामने एक चमकीले कागज से बना हुआ रोज था जो उतना ही बड़ा था जितना उसका पूरा फेस था। टिंसल मीन्स होता है लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ शाइनी कलर्ड पेपर। The little lady was a dancer, and she stretched out both her arms and raised up one of her legs so high that the tin soldier could not see it at all, and he thought that she, like himself, had only one leg. वो जो छोटी सी लेडी थी वो डांसर थी, उसने अपने दोनों आर्म्स जो है फैलाए हुए थे और अपने एक पैर को, एक लेग को ऊपर उठाए हुए थे, जिसके कारण जो टीन सोल्जर जिसका ओनली वन लेग था वो उसके पैर को देख नहीं पाया और वो सोचा कि वो लेडी उसके जैसे ओनली वन लेग वाली ही है। That is the wife for me, he thought, but she is too grand and lives in a castle, while I have only a box to live in. 25 of us all together. That is no place for her. Still, I must try and make her acquaintance. ये मेरी वाइफ हो सकती है, वो सोचा। मीन्स कौन? वो वन लेग वाला सोल्जर्स। पर ये तो बहुत ही अमीर है क्योंकि ये कैसल में रहते हैं और मैं तो केवल एक बॉक्स में रहता हूँ जिसमें टोटल 25 सोल्जर्स एक साथ रहते हैं और उधर और जगह नहीं है उसे रहने के लिए। फिर भी मुझे कोशिश करना चाहिए और उसको मीन्स उस लेडी को इसके बारे में बताना चाहिए। Then he laid himself at full length on the table behind a snuff box that stood upon it so that he could peep at the little delicate lady who continued to stand on one leg without losing her balance. फिर इस वन लेग वाले सोल्जर ने अपने आप को एक स्नफ बॉक्स जो कि टेबल में रखा था उसके पीछे खिसक लिया और जिससे कि वो उस डेलिकेट लेडी को, छोटी सी डेलिकेट लेडी को देख सके जो कि कंटिन्यूसली अपने एक ही लेग पर खड़ी थी बिना किसी बैलेंस को खोए। इधर स्नफ बॉक्स मीन्स होता है जो ज्वेलरी बॉक्स होते हैं उसको स्नफ बॉक्स कहा गया। When evening came, the other 10 soldiers were all placed in the box, and the people of the house went to bed. Then the playthings began to have their own games together, to play wizards, to have sham fights, and to give balls.
जैसे ही इवनिंग हुआ मीन्स रात हुआ, सारे 10 सोल्जर्स को बॉक्स में रख दिया गया और घर के लोग सोने चले गए। फिर जो दूसरे खिलौने थे वे लोग एक साथ गेम खेलने लगे, एक दूसरे से विजिट करने लगे, मिलने लगे और झूठ मूठ की लड़ाई करने लगे और एक दूसरे को बॉल पास करने लगे, बॉल वाला गेम खेलने लगे। The tin soldiers rattled in their box. They wanted to get out and join the amusement, but they could not open the lid. The nutcrackers played at leapfrog and the pencil jumped about the table. There was such a noise that the canary woke up and began to talk, and in poetry too. The tin soldiers rattled in their box. They wanted to get out and join the amusement, but they could not open the lid. The nutcrackers played at leapfrog, and the pencil jumped about the table. There was such a noise that the canary woke up and began to talk, and in poetry too. 10 सोल्जर्स को तो बॉक्स में रख दिया गया और बॉक्स के लिड को बंद कर दिया गया। तो 10 सोल्जर उधर एक साथ रखा हुआ था, तो उन लोग खरखर आवाज कर रहे थे। वे लोग बाहर निकल के जो दूसरे खिलौने थे, उन लोग जो खेल खेल रहे थे उनके साथ ज्वाइन करना चाहते थे, पर वे लोग बॉक्स के लिड को ओपन नहीं कर पाए। नट क्रैकर्स जो थे वो फ्रॉग जंप वाला जो गेम होता है ना, वो खेल रहे थे, पेंसिल टेबल पे कूद रहे थे। और इन सारे खिलौने की आवाज़ से कैनरी जो थे वो जाग के, कैनरी जो है बर्ड का नाम है, और वो भी बात करने लगी, किसमें, इन्हें पोएट्री फॉर्म में। Rattle means to make a noise like hard things hitting each other. Only the tin soldier and the dancer remained in their places. She stood on tiptoe with her legs stretched out as firmly as he did on his one leg. He never took his eyes from her for even a moment. केवल जो 3 सोल्जर जिसका एक पैर था और जो डांसर थे, उन लोग अपने प्लेस पर खड़े थे। वो डांसर जो थे वो एक पैर के उंगलियों के एकदम पॉइंट पर, टिप पर खड़ी थी और दूसरा पैर जो है एकदम स्ट्रेच ऊपर किए हुए थे और उसी तरह फॉर्मली खड़ी हुई थी जिस तरीके से वो वन लेग वाला सोल्जर अपने एक पैर पर खड़ा था। वो वन लेग वाला सोल्जर बिना पलक झपकाए एक टक उस लेडी को देखे जा रहा था। The clock struck 12 and with a bounce up sprang the lid of the snuff box, but instead of snuff there jumped up a little black goblin, for the snuff box was a toy puzzle. जैसे ही रात के 12 बजे उसी समय स्नफ बॉक्स का जो लीड है वो फटाक से खुला और उसके अंदर से स्नफ की जगह कौन निकला, एक काला भूत जो है वो कूद के बाहर निकला। और ये स्नफ बॉक्स जो था एक टॉय पजल था। गॉब्लिन मीन्स होता है भूत या फिर घोस्ट। Tin soldier, said the goblin, don't wish for what does not belong to you. But the tin soldier pretended not to hear. तो वो भूत क्या बोला गोब्लिन कि टिन सोल्जर उस चीज की विश मत करो जो कि तुम्हारे लिए नहीं है। पर टिन सोल्जर ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे कि उसने सुना ही नहीं है। वेरी वेल, वेट टिल टुमारो देन, सेड द गोब्लिन। तो गोब्लिन क्या बोला, ठीक है फिर कल के लिए तुम वेट करो। When the children came in the next morning, they placed the tin soldier by the window. दूसरे दिन सुबह जब बच्चे आए उसने टिन सोल्जर को विंडो के पास रख दिए। Now whether it was the goblin who did it or the draught
is not known, but the window flew open and out fell the tin soldier heels over head from the third story into the street beneath. It was a terrible fall, for he came head downwards, his helmet and his bonnet stuck in between the flagstones, and his one leg up in the air. ये गोबलिन के कारण या कोई दूसरा कारण था यह पता नहीं था, पर विंडो अचानक खुला और जो टीन सोल्जर है वो तीसरी मंजिल से सीधे नीचे स्ट्रीट पर फर्श पर गिरा, और उसके जो वो सिर के बल गिरा, उसके हेलमेट और उसके बोनेट जो है वो स्टोन मीन्स फर्श पर टकराया, और उसका जो ओनली लेग था वो हवा की तरफ ऊपर की तरफ था. The servant maid and the little boy went downstairs directly to look for him, but he was nowhere to be seen, although once they nearly trod upon him. If he had called out, "Here I am," it would have been all right, but he was too proud to cry out for help while he wore a uniform. तो जैसे नीचे गिरा तो वो छोटा सा लड़का जिसको बर्थडे में गिफ्ट मिला था और घर का सर्वेंट जो है वो सीधे नीचे गए उस टीन सोल्जर को देखने, पर वो कहीं नहीं मिला. तो एक बार तो ऐसा हुआ कि उन लोग उस खिलौने को कूदने वाले थे, खूंदने वाले थे, और उस समय वो टीन सोल्जर बोल सकता था कि अरे मैं इधर हूँ, पर वो नहीं बोला क्योंकि उसमें प्राउडनेस थे कि वह सोल्जर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है. Presently it began to rain, and the drops fell faster and faster till there was a heavy shower. When it was over, two boys happened to pass by. One of them said, "Look, there is a tin soldier. He ought to have a boat to sail in." फिर बारिश चालू हुई. पहले धीरे धीरे बारिश ड्रॉपलेट हुआ, फिर बारिश तेज हुई और बहुत तेज बारिश चालू हुआ. जब बारिश गिरना बंद हुआ तो दो लड़के जो हैं उधर से गुजर रहे थे. उनमें से एक ने कहा कि अरे देखो टीन सोल्जर. फिर उन्होंने एक बोट बनाया उसको रखने के लिए और उसको तैराने के लिए. So they made a boat out of a newspaper and placed the tin soldier in it and sent him sailing down the gutter, while the two boys ran by the side of it and clapped their hands. तो इस कारण से दोनों लड़के ने न्यूज़पेपर का बोर्ड बनाया, फिर उसको उसमें टीन सोल्जर को रखे और गटर में तैरने के लिए भेज दिए. और जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ रहा था दोनों लड़के भी जो है साइड बाय साइड उस जहाज के चल रहे थे और ताली बजा रहे थे. Where am I going now? Thought he. This is the black goblin's fault, I'm sure. Ah, well, if the little lady were only here with me in the boat, I should not care for any darkness. तो सोल्जर क्या सोचा, वो वन लेग वाला सोल्जर, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये जरूर वो काला भूत का कमाल है, मैं श्योर हूँ. ओह ठीक है, यदि वो छोटी सी लेडी अगर इधर मेरे साथ बोट में होती तो मैं इस डार्कनेस का इस मुसीबत में भी किसी का केयर नहीं करता. Isn't this a nice story? Okay, now children, I think all of you have understood the chapter.